Yes, good morning, students. We are understanding Java programming. Now, today is the 10th day, and in previous video lecture, we already familiar with the traditional programming as well as object-oriented programming, say how to create class, how to create object, how to create method. Now the time to understand how we can initialize our object with our fruitful values. So today's topic will be as it is. The first सबसे पहले हम देखेंगे introduction brief of Java constructor. Then we will understand how these constructors are different from methods in Java. Then we'll understand rules for creating Java constructor. After understanding the rules, we will try to make syntax so that we can make your own Java constructor. Constructor also has some types that we have to understand very clearly so that we can use that type of constructor in our project. So here the word is no argument constructor. So it is a type of constructor. Another type is parameterized constructor so that we can send our required argument as a parameter for the constructor. We can also think to make a copy constructor to make object initialization through exist object values. Lastly, we also understand constructor overloading in Java. So these are our highlights that we will understand one by one. Now, very first, I will explain introduction of Java constructor. I also request the students, those are taking interest in this kind of video lecture, they should subscribe this video so that they will get the all updated information and they can become full developer in a Java. We will understand first introduction. Here we have very important thought. It is recommended. What it is recommended? That all objects, what happen? That are created must be given initial values. तो this is very important recommendation कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में सभी के सभी ऑब्जेक्ट बेसिकली किसी इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज होना चाहिए. Now we have a information already we have done. So what is and where actually constructor in a Java? हमने तो नहीं देखा. तो where is the actually that constructor? So I can explain very simple way. Let I have here one class. In that class you have one int x as a member, and let I want to
display the value of this x. So I will call, say, static void display, in which we will make a one statement, say print ln and the x. Now tell me, whenever you will call this display method, will you get any value of x or you will get some garbage? So here we have to understand such important thought. Already we have done, as we are telling this. You have to give the proof of this. Where is the actually constructor in this kind of your main program? For example, we already making the main method also, that is the driver code. From that driver code we will call this display. But I want to know what will be the value of this x. Will you get 0? क्या आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, या फिर you will get garbage? आपको क्या मिलना चाहिए? तो your answer is 0. We should get a 0. Means actually this 0 coming from this inbuilt constructor. Now we have to make your own constructor. One more important thing, if you are interested to initialize your value, so we can initialize any variable. You can use first approach as a dot operator. You can use this dot operator to access your this value and assign some values individually. ठीक है? However, we can say it is a tedious approach. बहुत मुश्किल है कि इतना सोचना समझना और हर ऑब्जेक्ट के लिए उसे इनिशियलाइज करना. तो it will be some tedious approach. The other method is second approach, in which we will make a one method that is known as a get data, and that get data you have to initialize for this all values. But for that you have to call such in this way, like we have a object, we have to use dot operator, and we have to attach our this get data method, and these values 15 and 10. So let in this kind of program there may be two attributes, and that attributes will initialize with 15 and this 10. Now we will understand the very important thought behind this constructor. Constructor basically in Java is a special method. For what purpose? The purpose of this special method is used to initialize object. ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ये स्पेशल मेथड बनाया गया है. नाउ द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, है ना, हमें किसी ना किसी तरह उसे कॉल्ड करना पड़ता है. तो कब कॉल करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड. तो जब भी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर directly invoke हो जाता है. There is a no need and there is a no way you have to call. हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. Okay. Now it can be used to set initial values for object attributes.
तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होंगे उसकी वैल्यू को यू कैन सेट वेरी इजीली थ्रू दिस कंस्ट्रक्टर. Now, what is basically inside of this constructor? So here we have a notation in Java. A constructor is a block of code. जैसे हम कोई मेथड बनाते हैं वैसा ही similar to the method. जैसे मेथड में हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर के में भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे. नाउ इट इज कॉल्ड, ठीक है, आपको नहीं बुलाना, इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड. ये मैंने ऊपर भी बता दिया है, इसको इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं. नाउ एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, जब भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं थ्रू क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, there will be memory for the object is allocated in what memory. तो memory में इसके लिए allocation हो जाएगा because you are assigning some values. Every time an object is created, we know very well using the new keyword. हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं? न्यू ऑब्जेक्ट के न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. जब भी आप इसको करते हैं तो एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब एक से ज्यादा भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जो कि हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग टॉपिक में. लेकिन यहां पर यही मीनिंग है कि अगर एक से ज्यादा भी हैं तो भी एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड whenever you will use this new keyword and making a object of this class. तो चलिए यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्टर का थ्योरी को एक एक करके समझा है. नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड the difference between the constructor and the normal method of in Java. So let we have this important concept. A constructor must have the same name as the class name. तो कंस्ट्रक्टर का जो भी आइडेंटिफायर होगा वो क्लास के नेम जैसा ही होगा. लेकिन it is not necessary for the method in the Java. तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंस दिख रहा है कि मेथड को बनाते समय हम कोई भी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द टास्क. लेकिन कंस्ट्रक्टर में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको क्लास के नेम जैसा ही कंस्ट्रक्टर का नाम भी देना पड़ेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनी टाइप. जो भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हमें वहां से कुछ भी रिटर्न नहीं लेना है. एज वी नो देयर आर द थ्री वे टू कम्युनिकेट विद द एनी मेथड. नो वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन. So here you can't use this return type. Even you don't use the type or any void. है ना, जैसे कि हम अपने मेथड में यूज करते हैं कि if we do not return any value, use this void, say void display. तो such type of concept is available in the normal method. लेकिन कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए ये कंसेप्ट नहीं है, याद रखें. नाउ कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ओनली वंस एट ए टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट. भाई ऐसा नहीं है कि आपका मन लगा इस बार बुला लो, अगले बार बुला लो, आखिरी में बुला लो, जब भी आपको लगा आप बुला लो, ऐसा नहीं. This actually called only once at a time of object of creation. While मेथड के साथ क्या होता है, जब आपका मन चले तब उसको कॉल कर दीजिए.
So this is the basic difference in the constructor method and the normal method of your Java. अब हम देखते हैं rules. So rules of creating Java constructor, it is mostly similar to the previous slide. First rule is you have to create a constructor name. तो constructor का नाम बनाना है, तो constructor का नाम must be same as its class name. ठीक है. Now second rule, a constructor must have no explicit रिटर्न टाइप. एक्सप्लिसिट लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि हम नॉर्मल मेथड में लगाते हैं. ए जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट यूज एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड synchronize. Don't use this word with the constructor of this Java. So don't forget this all rule, obey this rule. Then you will not get any error. So let I have a syntax. So very first we have to familiar with the syntax, how we can construct our Java. So let we have a syntax. We know very well there is a class keyword, class का नाम रहेगा and class की body रहेगी. ठीक है. तो this will be your curly bracket and this curly bracket. तो ये दोनों curly bracket क्या शो कर रहे हैं? This is the class block. Now in this class name you have to create class constructor. So here we have to obey the rule. Class name should be as it is class name with the method property say parenthesis. Now this is the opening curly bracket and this is the closing curly bracket of this class. In this pair of curly bracket, you have to write your code. For example, let I have class name rectangle. So here I have two attributes. One is the length, second is the width. So we will make a one constructor. The name is the rectangle. Now whenever any object of rectangle will create, automatically you will get length is equal to 0, width is equal to 0. In place of this 0, you can use any other value also. Let this all we will see in the example. Now we will check out this all important thought through the coding concept. So let I have this online compiler and I will check the output, that is hello world. Are we getting or not? Let click on run, and if I am getting this hello world means everything is in functioning. Now we will develop our what? Constructor thought. Now say, let I have the class and name of class as a main. This is mandatory in this editor. Then make a class block. Now after making this class block, you make a driver code. Say the driver code will be your main method. Now in this main method, you write down your what print, and here you write down your welcome Java. Okay. Now this welcome Java, we also want to get through the my method. So let very first check whether you are getting welcome Java. Yes, I am getting a welcome Java. Now I want
to display this welcome Java from the your method. So initially you make a one method. The name of method is display. Now in this method you write down system out println welcome Java. Now tell me if I will not do anything and click on run, what I will get, error or answer. So here we should get an error. Why? Because this display should be use some return type if required. So we do not want, so we should use void here. Now again check whether you will get error or you will get what? Output. So here we are not getting the any error, means something is only missing, that is the calling of this method. तो let I am calling this display. ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से कॉल कर रहा हूँ. तो this is calling statement and we have this statement as a display. Now you are in the static main driver. So this function should be your static. Now check whether you will get error or you will get this output. So here I am getting a output. Okay, this is the welcome Java. Now the time to think how we can get this welcome Java through some object. Now in this program, try to understand, is any object is here? No, there is no object in this class main. Now we are trying to create what? Our object. So let very first create an object. How can create? The syntax is class name and then my object. This is identifier. Now the new, that is the operator, and then we will say what? Your main, call the constructor. So this is your default constructor. Now let I am calling this main and through my object I am calling this display. Now again you should get a output as a welcome Java. तो हमको ऑब्जेक्ट से भी वेलकम जावा मिल रहा है. Now I want to create one attribute, say x is equal to let 10. Now this value I have to print in this welcome Java. तो वेलकम जावा की जगह अब मैं क्या ले लेता हूँ? एक x ले लेता हूँ. ठीक है, तो whether we are getting this x as a 10. Now let's check whether we are getting this as a not. So we are not getting this one. Why? Because we have this int as a static. So it should be your static because you are calling this display from the static method. So this is become as a 10. तो यहाँ पर आपको देखिए 10 मिल रहा है एंड दिस इज एक्चुअली यूर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर रहा हूँ. तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूँ तो ये मेरा मेंबर 10 है. अगर सपोज करिए मैं 10 हटा देता हूँ. नाउ टेल मी व्हाट यू विल गेट. क्या विल यू गेट 0 और यू विल गेट गार्बेज? क्या मिलना चाहिए? ध्यान से समझिए. आप कितने लोग बोलते हैं 0 मिलेगा, कितने लोग बोलते हैं गार्बेज? प्लीज राइज हैंड और नोटिफाई इन द चैट बॉक्स. चलिए जल्दी से बताइए क्या मिलेगा. तो आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग हियर यू शुड गेट ए 0 क्योंकि इसके अंदर आपका कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है. तो लेट यू से you will get what? You will get 0 here. You will not get garbage concept. Now I want to change this concept कि my this x value should be initialized with this 10. तो देखिए अभी भी मैंने कोई
यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनाया है, लेकिन आई एम गेटिंग दिस x एज ए 0। अब मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 के लिए आइदर यू हैव टू मेक ए कंस्ट्रक्टर। अब मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम करता हूँ, देखिए ध्यान से। Now let I am making the one constructor name as a main. Now in this main I am making a x is equal to 10. Now tell what you will get. Value of x 0 मिलेगा या फिर 10 मिलेगा या फिर garbage मिलेगा। फास्ट डू द नोटिफिकेशन थ्रू चैट, किसी के द्वारा भी आप मुझे दीजिए, आई विल अंडरस्टैंड कि व्हाट बेसिकली यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। तो हियर वी आर गेटिंग 10 इंस्टेंट ऑफ दिस 0। तो यहाँ पे अब मेरा कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हो गया है जो हमने बनाया। दिस इज द यूजर डिफाइंड। यहाँ पे आपको जो वैल्यू डालनी है आप इस वैल्यू को यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दिस इज सम मोटिवेशन कि हाउ वी आर यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। चलिए अब हम चलते हैं अपने थ्योरी में। नाउ इन दिस थ्योरी वी विल अंडरस्टैंड मोर दैट इज द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब मैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, वन इज द नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंड इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। Now think how we can make no argument constructor and how we can make parameterized constructor। ठीक है, तो एक के बाद एक हम देखेंगे और फिर प्रैक्टिकल भी समझने की कोशिश करेंगे। Let I have here real example of no argument constructor। तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लीजिए। As the name specify, the no argument constructor of Java means it does not accept any parameters. Instead, using this constructor, the instance variable of method will initialize with fixed value whatever inside this my constructor। जैसे यहाँ पर 100 है तो मुझे 100 मिलेगा। लेट आई हैव दिस टू ऑब्जेक्ट। देखिए मेरे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा रेक्टेंगल से बना देता हूँ। लेट आई हैव दिस टू ऑब्जेक्ट। देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है। ठीक है, दे आर द टू ऑब्जेक्ट। नाउ व्हेन एवर यू विल कॉल बाय दिस मेथड to the your object, so you will get object 1 as a number 0, object 2 as a number 0। it means in the every object there will be the fixed value। तो ये यहाँ पर क्या है, fixed value है, वही यहाँ पर आ रही है। तो let same thing we will understand through the our प्रोग्राम कोडिंग से एक बार चेक कर ले कि वेदर वी विल गेट और दिस और नॉट। लेट वी हैव दिस 100 ही लेके चलते। तो लेट वी हैव ए वन ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ ऑब्जेक्ट 1 से दिस your 100 and again I am calling one main with this object 2 and then your new with this main। तो देखिए यहाँ फिर से मैं बुला रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट हैं। नाउ with through object 1 and with through object 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए we have two object। तो let object 1 with this display and object 2 with this display। Now tell me what you will get output। Will you get 100 and by object 1 and you will get what 100 with the object 2। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो let you will get this concept as a 100 and 100। तो आपको दो चीजें मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं हमको मिल रहा, yes we are getting this 100 and 100 means we have this concept। तो ये आपका concept complete यहाँ पर समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर भी हमको क्या था, ये 100 मिलना था और वही 100 हमें यहाँ पर मिल रहा है। इट मीन्स दिस इज द अवर थ्योरी एंड दिस इज अवर प्रैक्टिकल। तो ये दोनों चीज को आप समझेंगे तो ही आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा। ओके,
तो दिस इज फ्रॉम दिस यूर 100 and 100 विद द टू ऑब्जेक्ट। चलिए अब फिर से हम थ्योरी में जाते हैं। तो इन अवर थ्योरी लेट वी हैव दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 हो गया। अब हम देखते हैं नो आर्गुमेंट। तो नो आर्गुमेंट यानी यही हमारा जो कंसेप्ट था, इट इज ए नो आर्गुमेंट कंसेप्ट था। हमने अपने ऑब्जेक्ट को कॉल किया विदाउट एनी आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट नहीं है, यहां पर भी देखिए ध्यान से, यहां पे आर्गुमेंट नहीं है, ये एम्प्टी पैरेंथेसिस है, यहां पर भी एम्प्टी पैरेंथेसिस है। दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट एनी अदर वैल्यू इंस्टेड ऑफ दिस 100। 100 ही मिलेगा आपको, T1 नंबर से मिलेगा 100 एंड T2 नंबर से मिलेगा 100। तो लाइक दैट यू कैन ऑल्सो गेट दिस वैल्यू। देखिए यहाँ पर तो मैंने मेथड भी नहीं लगाया है एंड आई एम डायरेक्टली गेटिंग दिस वैल्यू। तो ये हमें मिलना चाहिए, तो वो आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो जरूर आपको वहां पे मिलेगा। तो लेट वी विल चेक दिस थ्योरी। अब मैं थ्योरी आपको एक बार और चेक करके बता देता हूँ। लेट आई हैव टू फिर से हम उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम जो यूज कर रहे थे डिस्प्ले, तो डिस्प्ले ना यूज करते हुए वी कैन यूज, हम डिस्प्ले को यूज नहीं करते हैं, अब हम यूज कर रहे हैं क्या, लेट वी हैव प्रिंट लाइन। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट 1 डॉट यूर एक्स, ठीक है, एंड देन यूर प्लस then this object 2 dot x. So through this your output you should get your data member. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भी हमको क्या मिलना चाहिए, 100 and 100 like that you should get। तो देखते हैं क्या हमें ये 100 and 100 मिल रहा है कि नहीं। ये गलती हमने की कि इसे कमेंट पे डालना था, ठीक है। तो we should say sorry, yes sorry, ओके, एज वी आर गेटिंग सेम कंसेप्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ हमने क्या लिखा, 100 लिखा और यहाँ पे भी हमें 100 मिल रहा है। तो दिस इज द बेसिकली कमिटमेंट इन यूर थॉट। भाई आपके थॉट में अगर ये चीज नहीं है कि क्या आना चाहिए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं थ्योरी आपकी मिसिंग हो रही है। ओके, तो लेट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है। नाउ अगेन वी विल रीच टू अवर थ्योरी एंड चेक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ अलग चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव वन ऑब्जेक्ट जो मेरे पास में था ना, यहाँ पर क्या था, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ मैंने बनाया ना, तो दिस आर द माई कंसेप्ट। ये मैं पूरा का पूरा वहां पे कॉपी करता हूँ, ये मुझको ऐसा नहीं चाहिए। अब मैं क्या चाहिए आपको बताता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आई विल चेक दिस एज ए। अब मुझे देखिए क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 में चाहिए 10 और ऑब्जेक्ट 102 में चाहिए से 20, ये मुझे चाहिए। तो हाउ वी कैन चेंज दिस कंसेप्ट, तो बेसिकली वी हैव टू थिंक अबाउट this int x. This is the actually theory. As soon as this x become 10, you will get this number as a 10. When this is, यहाँ पर क्या है आपका 10 आ रहा है ना, this is the your 10, तो यहाँ पे आपका 10 होगा। तो ये जब 10 होगा तो you will get this number 10, और यहाँ पर अगर आपका 20 है तो आपको यहाँ पर 20 मिलना चाहिए। तो चलिए इस चीज को मैं बना के आपको दिखाता हूं, तो यू विल सेटिस्फाई विद दिस थ्योरी। तो देखिए इसको थ्योरी को हम ऐसा करेंगे, आप लेट आई हैव दिस कंसेप्ट कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में आ जाते हैं एंड चेक लेट यूर इंट y इज देयर, ठीक है। तो मैं y को ले लेता हूं और यहाँ पे मैं y कर देता हूं। तो whenever I will call this object 1 with 10, तो वो 10x में चला जाएगा, और जब मैं यहाँ पर 20 बोलूंगा तो ये 20 में चला जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव टू से दिस आउटपुट, ठीक है। इसी से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 10 मिलना चाहिए और यहाँ पे आपको 20 मिलना चाहिए। पहले 100 मिल रहा था, अब यू विल गेट 10 and 20 इन दिस प्रोग्राम। तो ध्यान से देखिएगा कहाँ पर चेंजेस हो रहा है। देखिए यहाँ 10 20 मिलना था,
यहाँ पर आपको 10 और 20 अब मिलने वाला है। नाउ लेट आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। देखिए मैंने जैसे रन पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर 10 और 20 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 20 एंड 20। तो भाई मेरी मिस्टेक है। तो भाई मेरी मिस्टेक क्या है, I have to use this object 1 as a x and object 2 as a x। ठीक है, तो ये तो मैंने सही लिखा है, ऑब्जेक्ट 1 भी है ऑब्जेक्ट 2 भी है। तो यहाँ पे मुझे 20 क्यों मिला, आई हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ पर भी 10 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट 2 है। तो लेट वेयर इज द बिग मिस्टेक। देखिए ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है हमारे साथ। क्या हुई है कि हमें यहाँ पर 10 मिलना था। तो चलिए इसको अपन यहाँ से चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे हमें मिलना चाहिए डिस्प्ले से। बात तो वही है। तो आई शुड गेट दिस 10 एंड 20। तो आई शुड गेट हियर 20 एंड व्हाट 20। तो यहाँ पर भी हमको 20 ही मिल रहा है। हमें तो ऐसा नहीं मिलना था, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि 10 से इनिशियलाइज किया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि 20 से इनिशियलाइज किया है। तो ऑब्जेक्ट 1 विद द ऑब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे हमें 20 क्यों मिल रहा है, इसको हमें समझना है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, why not we are getting here 10 20। this is the one big question। कोई समझाएगा, कौन समझाना चाहता है। समथिंग थ्योरी इज देयर। क्या थ्योरी है उसको समझना अब आपको बहुत जरूरी है। तो लेट आई चेंज सम टू कंसेप्ट। मैं देखिए 2-3 चीजें चेंज करना चाह रहा हूं। फर्स्ट आई विल चेंज, देखिए सबसे पहले तो वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट से बुलाना चाह रहा हूं, तो वी डू नॉट वांट टू कॉल डायरेक्टली। तो आई शुड रिमूव दिस स्टैटिक। मैं स्टैटिक को यहाँ पर चेंज करूंगा, यहाँ पर भी स्टैटिक को मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, नाउ थिंक कि देर इज नो स्टैटिक इन दिस टू मेथड एंड वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस अवर कंसेप्ट। ठीक है, मैं यहां से इसको कॉलिंग कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये मैंने इसको लाके रखा है। नाउ सी वेदर वी विल गेट दिस 10 एंड 20 बिकॉज वी आर कॉलिंग थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, चाहे आप इसके थ्रू करिए चाहे आप उसके थ्रू करिए। इन बोथ टाइम हियर यू विल गेट 10 एंड हियर यू विल गेट दिस 20। ये दोनों चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे आप समझ गए तो मान के चलिए कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो लेट आई एम रन दिस प्रोग्राम। मैं देखिए प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, 2 बार 10-20 मिलेगा। एक बार 10-20 इसके थ्रू मिलेगा, एक बार 10-20 इसके थ्रू मिलेगा। देखिए तो यू विल गेट दिस 10-20। तो here we are getting 10-20 and here we are getting a 10-20। तो we have to think कि static will not come whenever you are calling through this object। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो लेट वी विल जंप टू अवर थ्योरी पार्ट। इन दिस थ्योरी वी विल अंडरस्टैंड दिस पैरामीटराइज। मैंने पैरामीटराइज बता दिया है। Now the two important thought is there। One is what copy constructor। तो देखिए copy constructor के लिए you have to understand how can make a this copy constructor। This is your normal कंस्ट्रक्टर, ये आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है एंड इट इज ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम जो पैरामीटर भेज रहे हैं वो पैरामीटर यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, जो m यहाँ है वही m यहाँ पर है। तो दिस पैरामीटर शुड असाइन टू दिस n, ये n में चला जाएगा। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, we are sending here number instead of this int। यहाँ int की जगह क्या लिखा है, नंबर, और नंबर क्या है, इट इज ए क्लास। इट मीन्स वी विल सेंड समथिंग एज ए ऑब्जेक्ट। तो हियर a इज ए सम न्यू ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो इस a के थ्रू वी विल असाइन a डॉट n
टू दिस n, तो ये n चेंज होगा यहाँ पे। तो लेट आई हैव हियर 1 इज ए ऑब्जेक्ट n1, n1 ऑब्जेक्ट है जो कि इसकी x की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x है। अब यहाँ पे मैं क्या भेजना चाह रहा हूँ, द न्यू ऑब्जेक्ट दैट इज द n2, n2 बनाना है मुझे, n2 बनाना है। तो देखिए ध्यान से, वी विल सेंड हियर ऑब्जेक्ट एज ए n1, तो ये n1 हम लोग यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, ये n1 आपको यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू दिस वी आर गेटिंग हियर 10, तो यहाँ पर ऑलरेडी 10 है, तो ये 10 आपको यहाँ पर मिल रहा है। Now we can also create this copy constructor through this concept। देखिए यहाँ पर भी आपको एक नया थॉट मिल रहा है कि let we have this concept, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे we are actually creating a new n3, हमने एक n3 बनाया है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये न्यू के थ्रू नहीं है, ओनली वी आर यूजिंग n3 इज इक्वल टू n2, तो वी विल आल्सो गेट द सेम कंसेप्ट इन द n3। तो n1 में 10 है, n2 में भी 10 है, तो n3 में भी क्या होगा, 10 होना चाहिए। ओके, द सेम कंसेप्ट वी विल आल्सो अंडरस्टैंड इन आवर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल से मैं आपको समझाने की अब पूरी कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से। तो लेट आई हैव दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर, अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करता हूं। तो पहले इसको मैं छोटा कर देता हूं, लेट दिस इज ए यूर, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं, ठीक है। जरूर आप लोग कमेंट में बताइए क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, तो सो दैट वी कैन इम्प्रूव यूर टीचिंग, है ना, मैं आपको थोड़ी सी टीचिंग को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूं। तो लेट आई हैव दिस नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नाउ वी विल मेक ए व्हाट, यूर copy constructor। तो in this copy we will send this m with some let value m के थ्रू इसको काम करेंगे, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे that is x is equal to m dot x, m dot x, क्यों, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट से उसे असाइन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, देखिए इसको तो मैं हटा दूं, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलिए इसकी भी जरूरत नहीं है अभी। सबसे पहले तो मुझे आपको समझाना है कि हाउ टू क्रिएट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट 2, इन दिस ऑब्जेक्ट वी विल सेंड ऑब्जेक्ट 1। अब मैं ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पर सेंड करने वाला हूँ, ठीक है, एंड चेक वेदर यू विल गेट डिस्प्ले, डिस्प्ले करना है हमको, तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले, तो यहां से इसे कॉल कर लेते हैं, एंड ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले। तो देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, यू शुड गेट 10, एंड यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, यू शुड गेट 10, तो आपको यहाँ पर 10 और 10 मिलना चाहिए। तो ये हमारी गारंटी है कि ये चीज अगर मिल जाती है तो हमारी थ्योरी पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैंने दोनों जगह एरो बना दिया है, अब ये आउटपुट आपको मिलना चाहिए। तो मैं रन करने जा रहा हूं, नाउ चेक द आउटपुट, तो हियर यू शुड गेट दिस 10 एंड 10, यस। तो देखिए ये 10 ऑब्जेक्ट 1 का मिल रहा है, और ये मुझे मिल रहा है ऑब्जेक्ट 2 से। तो अब थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, लेट द ऑब्जेक्ट 3, अब मैं ऑब्जेक्ट 3 बनाने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट 3 that will be your object 3, तो I will make a main with the object 3 is equal to object 2, object 2 से बनाएंगे, and then we will say object 3 dot display, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर भी आपको 10 मिलना है, तो ये जो 10 मिलेगा वो अब 10 10 10 तीन 10 आपको मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर यहाँ पर मिल जाता है तो आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो लेट आई हैव दिस कंसेप्ट एज ए 10 10 10, तो लाइक दैट यू कैन मेक वेरी इजी कंसेप्ट, ओके।
तो लास्ट एक टॉपिक हमारा बच रहा है, दैट इज नोन एज ए ओवरलोडिंग कंसेप्ट। तो मैं उसको थोड़ा सा थ्योरी आपके लिए लेके जा रहा हूं। तो देखिए ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो रहा है, वी हैव टू कंस्ट्रक्टर, वन इज द ऐड एंड सेकेंड इज द ऐड। अरे आपने बोला कि दोनों अलग अलग हैं क्या? हाँ अलग अलग हैं, बिकॉज हियर वी हैव this 2 parameter and here we have this 3 parameter. So due to this difference we have overloading concept. Our add is overloaded. So whenever you will call object 1 with this 2 parameter, so you will get this x plus y, that is the 5. तो आपको 5 मिलेगा। और ऑब्जेक्ट 2 में अगर हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे 2 plus 3 plus 4 that will be your 9 मिलना चाहिए। तो सेम चीज हम लोग देखना चाहेंगे अपने प्रैक्टिकल से भी। तो लेट आई विल एक्सप्लेन सेम कंसेप्ट। तो मैं ट्राई करता हूं कि आपको यहाँ पर ये चीज मिले। ओके तो हमें मॉडिफिकेशन क्या करना है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन हम करते हैं। देखिए बहुत सिंपल मॉडिफिकेशन है। तो लेट आई हैव दिस ड्राइवर क्लास। तो ड्राइवर क्लास है मेरे पास। तो ऑब्जेक्ट वन में हम क्या भेजेंगे, दैट इज द यूर, यहाँ पर क्या लिखा था वही भेजेंगे, जो लिखा है वही भेजते हैं अपन। 2 3, तो 2 3 भेजेंगे, 2 and 3। और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम भेजेंगे 2, 3, 4। तो ये भेजेंगे और हमें यहाँ पर डिस्प्ले की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम वहीं पर ही डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द यूर लॉजिक। अब देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मेन कंस्ट्रक्टर, दैट इज द मेन विद द यूर इंट x इंट y, है ना, x और y ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। तो लेट यू मेक ए यूर प्रिंट। अब मैं सीधा प्रिंट कर देता हूँ व्हाट, x प्लस y। ठीक है, तो ये मुझे मिलना चाहिए। Then after that I will also make one more constructor of 3 of the 3 parameter. One is int x, int y and int z। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर भी ये लिख देना है। तो दिस विल बी द यूर one output and this is the your another output, that x plus y plus z। अब देखते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, you should get here, यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए 2 plus 3 that is 5। और यहाँ कितना मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसे क्लेम कर देता हूँ कि ये दोनों मुझे मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं थ्योरी या प्रैक्टिकल में हमारी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी रेक्टेंगल बना देता हूँ, इसी में मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक श्योरिटी होनी चाहिए आपके कभी भी थ्योरी और लैब में। तो देखिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो सबसे पहले रन करिए। तो यू शुड गेट 5 and 9, हमें 2 चीजें मिलनी चाहिए और हमें मिल रही है। तो इट इज द सेंस कि हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आर ओके। तो हमने बहुत सारी चीजें आज सीखी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा ओवरलोडिंग कैसे करना है, हमने सीखा कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे करना है, हमने सीखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, फिर हमने सीखा नो आर्गुमेंट कैसे होता है। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें, जैसे रूल क्या है, सिंटेक्स क्या है, मोटिवेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है। तो आप पूरी की पूरी चीज समझने की कोशिश करिए और you become very good Java developer. Wish you best of luck. Thank you.